Hello, students. Welcome back to Tuition Masters. And today we are here with doing your very first session of physics of the chapter Light, Reflection, and Refraction. So, today is a session number one for my all dear grade 10 students. So, today we are going to discuss light, reflection, and refraction. तो एकदम लेंदी सा चैप्टर है, I would say. आई वॉन्ट इवन कीप यू इन बबल्स कि हाँ हाँ बहुत ईजी सा चैप्टर है आप ऐसे कर जाओगे नो आई से यू द ट्रुथ. The truth is, the chapter is long and it is difficult as well. Some topics are very very easy, but some topics yes are difficult. और ये आपको पता ही है हर एग्जाम में लाइट चैप्टर सबसे इम्पोर्टेंट होता है. So yes, although it is tough and it is long, we will try to cover it as easily as possible. ठीक है? So let us start with the first session today of light reflection and refraction. So basically you know कि क्या बात कर रहे हैं हम अपने पहली बार बहुत बार पढ़ा हुआ है सेम टॉपिक एट्थ में भी पढ़ा है. लाइट में इस चैप्टर में हम दो मेजर टॉपिक्स के बारे में बात कर रहे हैं रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. ओके सो बेसिकली हाउ डू यू सी थिंग्स. बेसिक क्वेश्चन ही ऑल नो आंसर इज लाइट है ना. हम लाइट से चीजें देख सकते हैं. इफ देयर इज लाइट इन योर रूम यू कैन सी एवरीथिंग. इफ लाइट इज नॉट देयर यू कैन नॉट सी एनीथिंग राइट. सो बात करते हैं कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन. So when I say reflection, reflection refers to nothing but the bouncing back of a light from polished and a reflective surface. अगर आपके पास एक polished and reflective surface है, for example, a mirror, और अगर उस पे आप एक टॉर्च की लाइट मारते हो तो इट गेट्स रिफ्लेक्टेड. ओके सो दैट बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन. ओके नाउ लेट अस डू सम ड्राइंग हियर. ठीक है एक बेसिक ड्राइंग है ये तो हेड के चैप्टर के आगे ही हमारे पास बहुत सारे ड्राइंग्स है. This is, let's say, this is my mirror. Okay, what is this? This is my mirror. Okay, what I'm doing is I am drawing an incident ray. एक रे जो हमारे इसके ऊपर पड़ रही है फ्रॉम अ सोर्स. द लाइट इज फॉलिंग. ठीक है लाइट फॉल हो गई. अब लाइट रिफ्लेक्ट भी तो होगी. सो लाइट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड. अब इनके बीच में आई विल ड्रॉ वन परपेंडिकुलर लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू दी वेट विच इज परपेंडिकुलर टू द मिरर ऑल्सो. ठीक है नाउ बेस्ड ऑन दिस कैन यू सी कि दो एंगल्स बन रहे हैं. दिस एंगल है ना. वन सेकेंड या दिस एंगल and this angle, correct? So now let us give names to all of this. The first one, the ray which falls on the mirror, is known as the incident ray. Then the light which is bouncing is known as the reflected ray. Okay, बीच में जो white line है जो that is perpendicular to the mirror, that is known as the normal. And the angles made incident ray और normal के बीच का angle is known as angle of incidence, and normal और reflected ray के बीच का angle is known as angle of reflection. So this is your basic reflection का diagram. Okay, now there are two laws of reflection. दो laws of reflection है based on what we drew just now. पहला law कहता है angle of incidence is always equal to the angle of reflection. मतलब ये दो angle, okay, this one and this one, both of them are equal to one another. जब भी reflection take होगा angle I will always be equals to angle R. You have to remember it. That's it. Nothing else. You have to remember. दूसरा लॉ, इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द मिरर at the same point of incidence and the reflected ray all lie in the same plane. मतलब जो आपका इंसिडेंट रे है, जो आपका इंसिडेंट रे है, जो नॉर्मल है, जो रिफ्लेक्टेड रे है, all these three things lie in the same plane. वो एक ही प्लेन में lie करेंगी. So that becomes your laws of reflection. अब बात करते हैं प्लेन मिरर की. यू ऑलवेज जाओ अपने वार्डरोब के सामने मिरर होगा, दैट इज अ प्लेन मिरर.
राइट। सो प्लेन मिरर की कुछ प्रॉपर्टीज है, एक इमेज प्लेन मिरर में फॉर्म होता है। सो उस इमेज की देर आर सर्टेन प्रॉपर्टीज, ठीक है। सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज? फर्स्ट वन इज इमेज इज वर्चुअल, ठीक है। वर्चुअल मतलब इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, ओके। दैट इज द मीनिंग ऑफ एन वर्चुअल इमेज, कि हम लोग उसको एक स्क्रीन में नहीं डाल सकते। जहां पे मिरर में है तो मिरर से स्क्रीन पे तो नहीं डाल सकते, राइट। और रियल इमेज होती है जो इमेज हम स्क्रीन पे डाल सकते हैं, लाइक द प्रोजेक्टर, है ना। सो एक वर्चुअल इमेज है और इरेक्ट है, मतलब जैसी यहाँ पे है, जैसी ऑब्जेक्ट है वैसा ही, ऐसा नहीं टेढ़ा मेढ़ा उल्टा सीधा लो, ओके। नेक्स्ट इज द साइज। साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। अगर लेट्स से ये the height of the boy is, let's say, just randomly I will take it, let's say it is 170 centimeter, ठीक है। 170 सेंटीमीटर है। सो अगर 170 लेंथ है तो क्या होगा, इमेज की भी लेंथ विल बी द सेम 170। ऑल राइट। नाउ next property says image formed is as far behind the mirror as the object is in front of it। यही टॉपिक से हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड स्टूडेंट्स हमेशा की तरह कंफ्यूज हो जाते हैं। सो अब ये हमारा मिरर, लेट्स से एम एम जो है वो मिरर है। सो यहाँ से लेके यहाँ तक जो ऑब्जेक्ट है और मिरर तक का डिस्टेंस अगर 5 सेंटीमीटर है, सो मिरर से लेके ऑब्जेक्ट का भी डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर होगा। अब क्वेश्चन पूछते हैं कि बताओ ऑब्जेक्ट और इमेज में कितना डिस्टेंस है, तो स्टूडेंट्स लिख देते हैं कि 5 सेंटीमीटर। नहीं, अगर आपको ढूंढना है ऑब्जेक्ट से लेके इमेज का, वो पूरा 10 सेंटीमीटर बनता है। सो द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द मिरर, sorry, object and the mirror is equal to the distance between mirror and the image, ठीक है। और लास्ट आता है मिरर इज लैटरली, सॉरी, इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड, मतलब जो लेफ्ट है वो राइट दिखता है और जो राइट है वो लेफ्ट दिखता है। दैट इज योर लैटरल इन्वर्जन। अभी मिरर के सामने लेफ्ट हैंड ऊपर करो, इमेज में राइट हैंड ऊपर होगा। ऑलराइट, अब बात करते हैं सबसे टफ टॉपिक की, जो है स्फेरिकल मिरर्स। ओके, आई विल टेल यू दिस इज नॉट दैट इजी। स्फेरिकल इतने इजी नहीं होते, आपके तो लेंसेज भी है दिस टाइम, सो इट्स नॉट दैट इजी। सो यस, लिसन केयरफुली टू व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग। सो अ स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर होता क्या? स्फेरिकल मतलब एक स्फीयर है ग्लास का, उसमें से हमने एक पार्ट कट कर दिया। सो एक पार्ट एक मिरर बन जाता है, दूसरा दूसरा बन जाता है, इजंट इट? सो स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स, जो इनवर्ड्स है, केव इनवर्ड्स है, दैट इज नोन एज अ कॉनकेव मिरर। जैसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, दिस इज योर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। ये यहाँ पे भी कंफ्यूजन होता है, रिफ्लेक्ट है ना, यहाँ पे ये जो ग्रे कलर का पार्ट है दैट इज योर बैक, ठीक है। कॉनकेव मतलब यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, ऑल राइट, सॉरी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, ओके। दिस एंटायर पार्ट इज योर रिफ्लेक्टिंग सरफेस व्हेन इट इज कर्व इनवर्ड्स, कॉनकेव मिरर, ऑलराइट। और कॉन्वेक्स उसका ऑपोजिट होता है। दिस बिकम्स द आउटवर्ड्स, कर्व आउटवर्ड्स है, दैट बिकम्स योर कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब कॉन्वेक्स और कॉन्केव के लिए हमारे पास कुछ टर्म्स होती है। देर आर सम स्पेशल टर्म्स रिलेटेड टू दीज स्फेरिकल मिरर्स, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स। सो हर स्लाइड पे नाउ आई विल ड्रॉ द थिंग, ठीक है। पहला लेते हैं हमारा कॉन केव मिरर, ठीक है, कॉनकेव। और दूसरा लेते हैं हमारा convex mirror. So first point says that the center of the reflecting surface of a spherical mirror is called the pole। मतलब ये जो spherical mirror इसका जो center part होगा that is known as the pole, ठीक है। वो part होता है क्या? pole, all right, that is known as the pole। it lies on the surface of the mirror, के ऊपर होता है वो, it lies on the surface of the mirror, mirror के surface पे होता है। it is denoted by the letter P। what is denoted by letter P? all right, अब next slide पे चलते हैं। तो देखो, अब नेक्स्ट स्लाइड हमने आई ऑलरेडी मार्क्ड यू कि पोल है, कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर, ओके। इफ यू डू नॉट नो स्टूडेंट्स, ओके, ये कॉनकेव है,
This is your concave, this is your convex mirror. Okay, in case you forgot it was not there. Okay, so पहला वाला concave है, दूसरा convex है. अब नेक्स्ट आता है द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स द पार्ट ऑफ अ स्फीयर. जो रिफ्लेक्टिव सरफेस होता है वो एक स्फीयर का ही पार्ट होता है. अब इस स्फीयर का ऑब्वियसली कोई ना कोई सेंटर तो हो गई, तो वो सेंटर इज नोन एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर. सो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, क्या होता है. बिफोर दैट आई शुड टेल यू वन पॉइंट कि अगर हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, यही जो है उस एक सर्कल कंप्लीट करते हैं. ओके, सी दिस, इफ आई कंप्लीट अ सर्कल लाइक दिस रफ ओनली, ठीक है, कंप्लीट करते हैं. सो आई कैन ड्रॉ वन लाइन थ्रू इट जो बन जाता है डायामीटर. सो द सेंटर ऑफ डायामीटर, सेंटर ऑफ द सर्कल इज नोन एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है, और ये लाइन को वी कॉल इट एज द प्रिंसिपल एक्सिस. क्या होता है वो, प्रिंसिपल एक्स होता है. क्या अभी कॉन्वेक्स का डिड आई ड्रॉ इट करेक्ट? नो, कॉन्वेक्स का पीछे नहीं होता, कॉन्वेक्स का होता है आगे. बिकॉज इट द सर्कल विल बी लाइक दिस, राइट. सो यहाँ पे बनेगा आपका समवेयर ओवर योर विल बी योर सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पे बन जाएगा आपका पोल. ठीक है, सो दैट इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर. नेक्स्ट आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब नथिंग बट आपका, आई शो यू हियर इट्सेल्फ. देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब सॉरी, रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक. ओके, दैट इज योर रेडियस ऑफ कर्वेचर. सेंटर से लेके पोल तक, दैट इज योर radius of curvature. So, the radius of sphere of which the reflective surface of a spherical mirror forms is called the radius of curvature. ठीक है, radius of curvature is between the center of the curvature to the pole. ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस भी आपने देख लिया. दिस स्ट्रेट लाइन, ये जो स्ट्रेट लाइन पास कर रही है ना, दिस स्ट्रेट लाइन इज नोन एज द प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, एक इमेजिनरी लाइन होती है. अगेन रिमेंबर, ये असली में नहीं होती, इमेजिनरी है ये. सो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल and the center of curvature of a spherical mirror is the principal axis. It is always normal to the pole. ठीक है, अब लाइट रेस जो होती है या तो वो कन्वर्जिंग होती है और इंटरसेक्ट वन पॉइंट पे, या तो वो डाइवर्ज करती है. सो ऐसा पॉइंट जहां पे लाइट रेस कन्वर्ज या फिर डाइवर्ज कर रही है, व्हेन द लाइट रेस आर आइदर कन्वर्जिंग और आइदर डाइवर्जिंग, दैट पॉइंट इज नोन एज द फोकस पॉइंट. जहां पे मिरर की रेज या तो वो कर रही है, क्या बोलते हैं, आइदर दे आर कन्वर्जिंग और आइदर दे आर डाइवर्जिंग. लेट मी शो यू हाउ. अब देखो, सो दीज आर माई टू मिरर. दिस इज माई कॉनकेव, करेक्ट, दिस इज माई कॉन्वेक्स मिरर. ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर. अब देखो, जो कॉनकेव होता है ना, कॉनकेव मिरर इज ऑलवेज द कन्वर्जिंग. इट इज ऑलवेज कन्वर्जिंग. हाउ, अभी लाइट रेज यहाँ पे स्ट्राइक कर रही है, लाइट रेस सारी स्ट्राइक करके कॉमन पॉइंट पे मिलेगी, सारी लाइट रेस करके कॉमन पॉइंट कन्वर्ज करेगी. ठीक है, दैट इज व्हाट इज नोन एज कन्वर्जिंग मिरर. ठीक है, इट इज नोन एज कन्वर्जिंग मिरर. इस पॉइंट पे वो सारी लाइट रेज आके कन्वर्ज हो रही है, दैट इज नोन एज द फोकस. ठीक है, सिमिलरली अगर इसकी बात करें, सो यहाँ पे लाइट रेज आ रही है, करेक्ट, द लाइट रेज आर कमिंग. ठीक है, सारे लाइट रेज आर कमिंग. अब यहाँ पे वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, करेक्ट, रिफ्लेक्ट हो जाएगी. ऑलराइट, अब यहाँ पे एक कॉमन पॉइंट तो आ नहीं रहा, सो हमको जाना पड़ेगा मिरर के पीछे. मिरर के पीछे हम अपना प्रिंसिपल एक्सिस बढ़ाएंगे और सारी रेस को एक कॉमन पॉइंट पे लेके आएंगे, कॉमन पॉइंट के उनको ज्वाइन करेंगे, और ये कॉमन पॉइंट अगेन बन जाता है आपका फोकस. सो मिरर के पीछे होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर का फोकस, एंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर वेयर द लाइट रेज आर कन्वर्जिंग इज द फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर. ओके, अब फोकल लेंथ. व्हाट इज फोकल लेंथ? डिस्टेंस ऑफ इमेज from the position of the mirror gives the approximate value of focal length. focal length मतलब कुछ नहीं, मतलब द डिस्टेंस ऑफ इमेज, इमेज की जो डिस्टेंस है मिरर में से,
ठीक है। जहां पे मिरर है, अगर दिस इज माई मिरर, सो और इमेज यहाँ पे है, ठीक है। दिस इज माई इमेज, so इमेज और मिरर, पोजिशन ऑफ मिरर में कितना डिस्टेंस है, दैट इज माई फोकल लेंथ, ठीक है। व्हाट इज दैट? फोकल लेंथ। नाउ next thing, reflected rays appear to come from a point on the principal axis. This point is called the principal focus of the convex mirror. Convex mirror का देखो क्या होता है, जो लाइट रेज होती है वो अपियर करिए कि एक पॉइंट से आ रही है, लाइक इफ यू लुक ओवर हियर, एक पॉइंट से आ रही है जो फोकस भी होता है। सो प्रिंसिपल फोकस एंड द फोकस आर द सेम थिंग इन अ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब कॉनकेव की बात करें तो क्या होता है, रेज विच आर इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट, यहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रही है, राइट। तो दैट इज द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब फोकल लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस, पोल से लेके प्रिंसिपल फोकस तक का, पोल इज सेंटर और प्रिंसिपल फोकस से लेके उनका लेंथ इज द फोकल लेंथ, वी राइट इट इन द कर्सिव एफ, ठीक है। दिस इज योर फोकल लेंथ, ठीक है, और दिस इज योर फोकल लेंथ, मतलब डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, ओके। अब हम बात करते हैं कि इमेजेस विच आर फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर, इमेजेस जो फॉर्म होती है कॉनकेव मिरर में, ठीक है। पहला हमारा आता है ऑब्जेक्टिव, इन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट। सो हम रे डायग्राम कैसे बनाएंगे, हम अभी कॉनकेव की बात ही करें, इस सेशन में कॉनकेव करेंगे, अगले में हम कॉन्वेक्स करेंगे, ओके। आई क्विकली ड्रॉ द डायग्राम एंड शो यू। नाउ लुक ओवर हियर, ये जो है आपका ऑब्जेक्ट, दैट ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे, ठीक है, ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी में। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपका पोल ढूंढेंगे, ये रहा पोल। इसके बाद हम एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे, कॉनकेव मिरर चल रहा है, डू नॉट गेट, कॉन्वेक्स को निकाल दो अभी, कॉनकेव की बात करें, ओके। अब क्या होगा, लाइट रेज आर कमिंग, ठीक है, लाइट रेज पहुंची यहाँ पे, ठीक है, सारी लाइट रेज साथ में बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे भी लाइट रेस इधर से आई, यहाँ पे पहुंची, नीचे से भी आई, यहाँ पे पहुंची, ठीक है। ज्यादा रेस तो बहुत सारे, बट यू डू नॉट हैव टू ड्रॉ ऑल ऑफ देम, ठीक है। अब क्या होगा, एक पॉइंट होगा जो आपका होगा प्रिंसिपल फोकस, उस फोकस पे सारी लाइट रेस यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी ज्वाइन कर लेगी एट द फोकस, ठीक है, एट द फोकस। और ये रहा, लेट अस अज्यूम दिस इज अ सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे, सो दैट विल बी योर एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन जाएगा, इजंट इट। सो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी मिल गया। तो दिस इज अ रे डायग्राम फॉर द फर्स्ट पॉइंट, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है। तो अब बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टीज की, इमेज। इमेज कहाँ पे बनेगी अभी आपकी, इमेज यू कैन सी क्लियरली फोकस पे बनेगी, ठीक है, जो फोकस है वहां पे इमेज बनेगी। उसके बाद साइज क्या होगा, अब सारा कन्वर्ज हो रहा है, कन्वर्ज हो गया, सब साथ में आ गए, मतलब हाईली डिमिनिस्ड है, ठीक है, हाईली डिमिनिस्ड मतलब एकदम छोटी, ठीक है। और नेचर क्या होगा, मतलब वर्चुअल इरेक्ट क्या होगा, सो नेचर विल बी रियल, हम स्क्रीन पे ऑप्टेन कर सकते हैं, और होगी इन्वर्टेड मतलब अपसाइड डाउन, ठीक है। सो दैट इज योर प्रॉपर्टी, ठीक है, पहला हो गया। अब दूसरा देखते हैं। नाउ बिफोर गोइंग अहेड, आई विल ऑलरेडी राइट दिस इमेज साइज नेचर सो दैट इट इजी एंड टाइम इज नॉट वेस्टेड, ओके। नाउ नेक्स्ट वन, ऑल राइट। सो ये रहा आपका दूसरा, दूसरी प्रॉपर्टी है, जब ऑब्जेक्ट सी के बियॉन्ड है, सी के थोड़ा सा पीछे है, तब लाइट रेज हाउ विल इट पास, ठीक है। सो अगेन लाइट रेज यहाँ पे गई रिफ्लेक्ट होने, ठीक है, रिफ्लेक्ट होके आई कैन से कि वो कहाँ पे, तो नीचे आएंगी, ठीक है, इट विल फॉल डाउन, ठीक है। अगेन दिस पॉइंट बन जाएगा आपका फोकल, ठीक है, सॉरी फोकस बन जाएगा आपका। अब दूसरा, यहाँ से एक दूसरी रेज भी पास करेगी थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ से वो वापस रिटार्ड हो जाएगी, क्योंकि जहां से आए उसी टाइम वहां से चली जाएगी। सो ये बीच में जो ट्रायंगल जैसा बना, वहां पे आपकी बनेगी इमेज जो होगी इन्वर्टेड, ठीक है, ऐसी आपकी एक इमेज बन जाएगी अब, ठीक है। सो ये आपका दूसरा रे डायग्राम। अब देखो क्या प्रॉपर्टीज हुई इसकी,
ये रहा आपका इमेज। अब देखो बियॉन्ड सी, अब इमेज कैसी होगी? इमेज कहाँ पे बन रही है आपकी? एफ और सी के बीच में, करेक्ट, बिटवीन एफ एंड सी। देखो एफ और सी के बीच में बन रही है, राइट। साइज क्या होगा इसका? ये डिमिनिश्ड होगी, छोटी ही होगी, कन्वर्ज हो रहा है तो सारे छोटे होंगे। अब डिमिनिश्ड मतलब एकदम भी छोटी नहीं, नॉर्मल, ठीक है। अब नेक्स्ट, नेचर कैसा होगा? नेचर आपको सीधा सीधा दिख रहा है, सेम है, रियल होगा। एंड इन्वर्टेड, आपको साफ साफ दिख रहा है कि इन्वर्टेड इमेज ही बनेगी, ठीक है। डन। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। अब नेक्स्ट आता है हमारी ऑब्जेक्ट जो सी पे है। अगर हम बोले जो ऑब्जेक्ट है हमारा एग्जैक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो क्या होगा? ये सबसे इजी रे डायग्राम बनेगा आपका, ठीक है। अब देखो, अगर सी पे है तो लाइट रेज यहाँ पे जाएंगी, ठीक है, स्ट्रेट गई। उसके बाद वो कहाँ पे आ जाएंगी? इट विल बी एग्जैक्टली बिलो, ठीक है, मतलब ये बन जाता है आपका फोकस, ठीक है। उसके बाद एक लाइट रह गई, दूसरी भी यहां से जाएगी थ्रू द फोकस, है ना, और कहाँ पे चली जाएगी? इधर बन जाएगी, ठीक है। सो व्हाट कैन यू से? अब ये तो हो गया, अब ये लाइट रेस बन गई तो क्या होगा? सी के नीचे आपका बनेगा, एग्जैक्टली सी के नीचे, ठीक है। लाइट रेस इन्वर्टेड आ रही है, ठीक है, लाइट रेज आर इन्वर्टेड, सो कन्वर्ज होके वो नीचे आ जाएंगे इमेज, ठीक है, बिलो द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो अगेन प्रॉपर्टीज लिखते हैं। इमेज कैसी बनेगी? पोजीशन हमारे सी पे है तो इमेज की पोजीशन पे भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही होगी, ऊपर नीचे डजंट मैटर्स राइट नाउ। द थिंग इज इट विल बी ऑन सी इटसेल्फ। अब साइज से पता चलेगा, साइज विल बी सेम साइज। देखो सेम साइज कब बनेगा इमेज का? जब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगी, दैट टाइम। और नेचर इसका है रियल और इन्वर्टेड, ठीक है। इसका भी रियल एंड इन्वर्टेड ही है, ठीक है। This is done. Let's move towards the next one. ऑल राइट, सो अब दूसरा फोर्थ वन है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट विल अंडरस्टैंड। तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आपका ऑब्जेक्ट है तो क्या होगा? लेट अस सी। अब ये लाइट रेस जाएंगी यहाँ पे तो वापस यहाँ पे आ जाएंगी सेम डायरेक्शन में, ठीक है। अगर ऐसे जाती है लाइक 90 डिग्रीज में ऐसे जाएगी तो फिर वो फोकस के थ्रू नीचे आएगी एट अ स्मॉल एंगल, ठीक है, एक छोटे से एंगल पे नीचे आ जाएगी, ठीक है। यू कैन से कि थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर देते हैं, ओके। अब देखो, अब ऊपर से भी लाइट रेस जाएंगी, ठीक है, ऊपर से वो इधर से जो आ रही है ये वापस यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू नीचे जाके एक दूसरे को मिल जाएंगी, तो यहाँ पे बनेगी आपकी इमेज। अब देखो साफ साफ दिख रहा है, इमेज ऑब्वियसली लार्ज है, ठीक है। सो इमेज की प्रॉपर्टी क्या पे बनेगी? इस पे इमेज है बियॉन्ड सी। यहाँ पे देखो अभी उल्टा हो रहा है सारा। जब बियॉन्ड सी में था तो सी और एफ के बीच में बन रहा था, करेक्ट। अब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है तो जो इमेज है वो सी के बियॉन्ड बनेगी। और साइज क्या होगा इसका? साइज जैसे पहला वाला था डिमिनिश, तो ये बन जाएगा एनलार्ज्ड, ठीक है, बड़ी होगी, एकदम बड़ी भी नहीं, हल्की सी बड़ी। अगेन नेचर तो रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा, ओके। ये हो गया आपका नेक्स्ट वन। अब चलते हैं हम हमारे फिफ्थ वाले पे, दैट इज एट एफ। अगर अभी आपके ऑब्जेक्ट एफ पे है तो क्या होगा? अब देखो एफ पे हमारी ऑब्जेक्ट आ चुकी है, ठीक है, एफ पे ऑब्जेक्ट आ गया है। अब हम इसके लाइट रेस बनाएंगे, आपको खुद से इमेजिन करना है लाइट रेस कैसे बनेगी। अब देखो पहला ऊपर जाएगी तो जहां से आई है वहां से वो रिटार्ड होके थ्रू सी वी कैन से समवेयर इधर आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेट स्ट्रेट जाएंगे एज अ 90 एंगल समझ लो, तो एफ के थ्रू वापस यहाँ पे जाएगी, इजंट इट। तो अब क्या बन रहा है? रेज आपस में नहीं मिल रहा, अब अपने से मिला के नहीं लिख सकते, रेज नहीं मिल रही है यहाँ पे। इट इज समवेयर, इट विल कीप ऑन गोइंग पैरेलली, मतलब कहाँ पे जाके इंफिनिटी पे आपकी इमेज बन जाएगी, ठीक है। सो अब इमेज कहाँ पे बन रही है? इमेज बन रही है इन्फिनिटी। उसके बाद अब साइज क्या होगा? हाईली इनर्ट। अब इसका साइज बहुत ही बड़ा होगा बिकॉज ये इन्फिनिटी पे जाके बन रही है, ठीक है, एनलार्ज्ड। और इसका भी नेचर अगेन
रियल एंड इन्वर्टेड होगा। अभी जो हम लास्ट वाले पढ़ेंगे उसमें हल्का सा चेंज आएगा। ऑलराइट, नाउ द लास्ट वन एंड थोड़ा ट्विस्ट वाला इज इफ द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पी एंड एफ। पी का से आ गया पोल और फोकस के अगर बीच में इमेज बनती है, सॉरी ऑब्जेक्ट होता है, तो इमेज कहाँ पे आएगी? सो ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट इधर। ठीक है, अब बनाते हैं इसकी लाइट रेस। फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन ऊपर जाएगा, रिटार्ड होके थ्रू सी वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम इधर बात करते हैं, इधर स्ट्रेट करेंगे तो स्ट्रेट पे भी क्या होगा? स्ट्रेट एक्चुअली वो कनेक्ट करेगा टू द फोकस। अगर हम फोकस पे रिफ्लेक्ट करते हैं तो वो नीचे चला जाएगा। ठीक है, सो दैट मीन्स इधर तो नहीं बनेगा, हमको मिरर के पीछे जाना पड़ेगा। इफ वी गो बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर जाते हैं तो क्या बनेगा? हमारा लाइट रेस कुछ ऐसे ऐसे जाएंगी। ठीक है, और जो नीचे थी वो भी इधर ऊपर कनेक्ट हो जाएंगी। करेक्ट, इट्स बिहाइंड द मिरर, दैट्स वाई। सो आपकी इमेज भी यहाँ पे बनेगी। ओके, आपकी इमेज भी विल बी फॉर्म बिहाइंड द मिरर। अब इसकी प्रॉपर्टीज अलग हो जाएंगी। इमेज जो है इट विल बी बिहाइंड द मिरर। साइज जो इसका है नॉर्मल एनलार्ज रहेगा, ज्यादा छोटा नहीं ज्यादा बड़ा नहीं, एनलार्ज। ओके, और प्रॉपर्टी रियल एंड इन्वर्टेड बिल्कुल नहीं। इसकी जो प्रॉपर्टी होगी ये होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। जैसा प्लेन मिरर में बनता है राइट, वैसा बनेगा। सो दीज आर द 6 टाइप्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। आपके टेक्स्ट बुक में कभी इधर दिया है कभी उधर, तीसरे पन्ने पे दिया। सो दैट्स व्हाई टुक इट टुगेदर ताकि आपको इजीली समझ आए। पहले उन्होंने सीबीएसई ने ये टेबल दे दिया, उसके बाद दूसरी चीज पढ़ाना चालू कर दी। सो दैट इज दिस इज इंपॉर्टेंट। सो ये हो गया आपका। ऑलराइट, अब थोड़े से और टॉपिक्स पढ़े, वी कैन इजीली डू इट। नाउ 5 मिनट्स और लगेंगे एंड वी विल कंप्लीट इट। नाउ नेक्स्ट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल। अगर इमेजेस तो हम बना लेंगे, कॉन्वेक्स के भी हम अगले क्लास में कर लेंगे। अब बात आती है कि रिप्रेजेंट कैसे करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर a ray parallel to principal axis after reflection, if the ray is parallel to principal axis after reflection, it will pass through the principal focus. कॉनकेव में क्या होगा? अगर वो लाइट रे पैरेलल है टू द प्रिंसिपल फोकस, तो व्हाट हैपन? इट विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस के थ्रू पास करेगी। अभी हमने सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी ना कैसी होती है। अब आपने वो पढ़ लिया, अब कैसे बनाना है ना, दिस विल बिकम वेरी इजी। अभी आपने पढ़ लिया ना तो आपको समझ, अच्छा ये तो ऐसा ही होता है। अब कॉनकेव की बात करें, सो इट विल अपीयर टू डाइवर्ज। अगर यहाँ पे आ रही है रेस पैरेलल, सो क्या अपीयर करेंगी कि ये डाइवर्ज हो जाती है। ओके, नाउ ये सारी आपको रिप्रेजेंटेशन की टिप्स दे कि आपको कैसे बनाना होगा। ठीक है, अब आपने तो पढ़ लिया कैसे बनाना है। सो दिस बिकम्स वेरी इजी। अब नेक्स्ट, अ रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। अगर प्रिंसिपल फोकस के थ्रू रे पास कर रही है, सो व्हाट विल हैपन इन अ कॉनकेव मिरर? द रे इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स, वो वापस ऐसे पैरेलल बन जाएगी। ठीक है, और कॉन्वेक्स में अगर वो लाइट रे ऐसे आ रही है, सो अगेन वो पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, दोनों दोनों में वो पैरेलल हो जाएगी। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट देखो यहाँ पे। नेक्स्ट, अगर रेस पासिंग टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास करेगी रे, सो क्या होगा? वापस वो अलोंग द सेम पाथ चली जाएगी, जहां से आ रही है वहां पे चली जाएगी। सेम हैपेंस इन कॉन्वेक्स आल्सो, यहां से आई यहां से वापस चली जाएगी। ठीक है, नो एंगल विल बी फॉर्म्ड। और नेक्स्ट, अ रे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर एक रे आ रहा है पर वो ऑब्लिक है टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसा कोई एंगल बन रहा है स्पेसिफिक, सो टूवर्ड्स पी, पोल की तरफ आ रही है, सो ऑन द कॉनकेव मिरर या फिर कॉन्वेक्स में, सो इट इज ऑल्सो रिफ्लेक्टेड ऑब्लिकली, जैसे आया वैसे ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इफ आई शो यू, वी रिमेंबर डूइंग दिस, हमने पोल पे बनाया था, रिमेंबर? हाँ ये देखो यहाँ पे ही है, देखो यहाँ से हमने पोल पे बनाया, सो दिस बिकम्स एंगल आई एंगल आर, दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो पोल पे जैसे बनाओगे वैसे ही वो वापस आ जाएगा, मेकिंग इक्वल एंगल्स। अब लास्ट टॉपिक है आपका यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर।
चैप्टर का लास्ट टॉपिक अनफॉर्चुनेटली नहीं है, पर हाँ आज के सेशन का फर्स्ट वन इन टॉर्चेस। टॉर्चेस के जो लेंस होते हैं वो कॉनकेव, लेंस नहीं सॉरी सॉरी, मिरर जो होते हैं वो कॉनकेव होते हैं, हेडलाइट मिरर्स। देन जो डेंटिस्ट के पास वो जो होता है चेक करने के लिए टीथ, दैट इज कॉनकेव, ताकि बड़ी एकदम क्लियर इमेज दिखे। शेविंग मिरर्स में इजीली आपका शेविंग करने के लिए, एंड एट द सोलर this thing your solar also solar what do we say furnaces, this is used. So with this students I know आज का lengthy session complete होता है. Thank you so much for watching, and very good to all of you for staying till the end and watching the entire video. So thank you so much for watching. I'll be seeing you in our next session जहाँ पे हम जैसे आज का सेशन बस रे डायग्राम से भरा हुआ था, राइट, अगला सेशन भी वैसा ही होगा. So I'll be seeing you in our next session. Till then make sure to like this one, share with your friends and subscribe करो चैनल को. I'll be seeing you soon. Till then take care and goodbye.